Good morning, students. So I have provided you the syllabus, the contents of chapter number first, and the meaning of trade and commerce. So here is the chapter number first, nature and purpose of business. We have already discussed the meaning and the meaning of trade and meaning of commerce. Very shortly, we will revise these topics. What is the meaning of trade? I have already told you. Buying and selling of goods and services is known as trade. Means when we purchase or when we sell any goods or any services, it is under the trade. Commerce is the very big concept, and trade is the part of commerce. Is the big concept, and it includes trade and aids to trade. Trade means buying and selling of goods and services, and aids to trade means those activities or those aids, yeah, those services which is help to do the trade. What are the aids to trade? Warehousing, transportation, finance, banking, and communication. Two more aids to trade I will provide you. So commerce means कि trade and the services which is help to do the trade is known as commerce. Every student should know the meaning of commerce, because you all are the commerce students, and you should know what is the meaning of commerce. If anybody asks you, then you should know. ठीक है? Trade and aids to trade. Now moving towards the concept of business. The subject means your subject is business. So moving towards this concept, before discussing the meaning of business, we should know the human activities. जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, what is the human activities? Any activity which is done by the human being to earn livelihood is known as human activities. Everybody knows that to earn livelihood or to live in this world, we should earn some money. We should earn some profit. So how we should earn? By doing any activity. And that activity which is done by the human being to earn livelihood, to earn money, to earn profit is known as human activities. So the simple meaning is any activity which is done by the human being to earn livelihood is known as human activity. Human activity has been categorized into two main categories. What are these? First is economic activities, and second is non-economic activities. Economic activity, both are the category of human activities. First is economic activities. Economic activity is also done by the human being, and non-economic activities is also done by the human being. But the only difference between these two are economic activities is done by the object of earning money. Means these activities is performed by the aim of earning money. Means when we do any activity to earn money is known as economic activity. For example, a teacher teaches in a school is economic activity. Second category is non-economic activities. Means this activity is not done by objective of earning money. This activity is done only for self-satisfaction, social welfare. ठीक है? Both activities are done by the human being, but in economic activity it is done by the objective of earning money, and in non-economic activities it is done for self-satisfaction या social welfare. The very simple example I want to tell you that a teacher teaches in a school and he or she will get salary. ठीक है? Is a economic activity. But a same teacher, when he or she will teach his or her child in her home, then it is a non-economic activity. So I think all students should understood what is the difference between these two activities.
एक टीचर जब वो स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं और उनको उनके रिटर्न में उसको सैलरी मिलती है, तो क्योंकि वो मनी को अर्न करने के लिए, सैलरी के लिए वो वहाँ वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन सेम टीचर अगर घर पे आके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो मनी के रिटर्न में वर्क नहीं कर रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में आएंगे। I think both activity should be understood by all the students. Now moving towards non-economic activity is ended here because we don't study this non-economic activity. We will take economic activity. Economic activities has been categorized into 3 main categories. You can see that here. Economic activities has been categorized into 3 main activity. What are these? Let's see. Business, right? Business, the concept, business, the subject. You should know the meaning of business and the commerce also. So here, economic activities has been categorized into 3 main category. Business, second one is profession, and the third one is employment. Now pick up this business topic. First we will study this meaning and the nature of business. So what is the meaning of business? Can any student can any student know about the business? Every student know कि my father or my uncle or any other relative done business, या मेरे फादर या मेरे अंकल का बिज़नेस चल रहा है, तो ये बिज़नेस। तो क्या किसी स्टूडेंट को उसकी एक्चुअल मीनिंग पता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग? ओके, बिज़नेस मीन्स कि इट इज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। Means कि business is a human activity because it is a category of economic activity, and all the economic activities are done by the human being. So what we can say about the business? Business is a human activity, or we can say economic activity, in which production, purchase, sale or distribution of goods and services are there. And why we do business? With the aim to earn profit. So in simple words we can say that कि business is a economic activity in which the production, sale, purchase or distribution of goods and services are there. And why we do business? With the aim to earn profit. सिंपल मीनिंग में कहें कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर हो रहा है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, या हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, या हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ सोल्ड कर रहे हैं, या हम कहीं से सामान लाकर सिर्फ कस्टमर्स को या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो किस में आएगा? बिजनेस में। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, इसके पीछे एम क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट। देखिए, जब ये मोटिव हमारा मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट वाला रहेगा तभी वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज नो एक्टिविटी विल बी इंक्लूडेड इन अ बिजनेस, रादर इट डोंट हैव द मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। अगर उसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट नहीं है तो वो बिज़नेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर हो रहा है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम ख़रीद रहे हैं, या हम बेच रहे हैं, या हम सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को इन रिटर्न ऑफ अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट के बदले में, रिटर्न में हमको प्रॉफिट हो रहा हो, तभी वो बिज़नेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल्स। फिशिंग, ठीक है,
फिशिंग, अगर इफ़ एनी पर्सन डू दिस फिशिंग देन इट इज़ इंक्लूडेड इन द बिजनेस. Manufacturing of clothes, manufacturing of shoes or any other goods, तो इट इज़ इंक्लूडेड अंडर द बिजनेस. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क, फिशिंग वर्क या फार्मिंग, है ना. फार्मिंग किस में? प्रोडक्शन में. हमने बोला ना प्रोडक्ट कि आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस कौन करता है? फार्मर. और उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग. तो फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिशिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन सारी कैटेगरीज़ में आ रही हों, तो वो हमारे बिजनेस में इंक्लूड होंगी, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट होना चाहिए. तो इस सारे एग्जाम्पल्स के अलावा भी आप और भी एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में हैं तो उनको आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जो मेन हेडिंग या मेन मीनिंग होगी बिजनेस की, वो ये लाइन इंक्लूड होना चाहिए: प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम टू अर्न प्रॉफिट. Okay, so this is the meaning, basic meaning of business, and afterwards we will study the nature or the purpose of business. Moving towards the next topic, that is profession. Profession is also the one's type of economic activity, like the business, like the employment. ठीक है, तो next is profession. Let's see. Okay, so next is profession. Profession, what we can say about profession? Profession is also a type of economic activity. Here you can see that, you know, the profession is a type of economic activity, but in this there is a specialized knowledge, there is a specialized skills, and the person who engaged in profession should have the specialized knowledge of that profession or the skills of that profession, which is he or she should be applied by an individual to earn a living. In simple words, we can say that the profession is a type of economic activity, and in this there is a specialized knowledge, या हम कह सकते हैं कि the person who is engaged in a profession should have specialized knowledge or the skills of that profession to be applied by an individual to earn a living. लिविंग को अर्न करने के लिए जब हम अपनी नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का ये वर्ड जो है हम यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड नॉलेज मीन्स कि जो हमें किसी पर्टिकुलर लर्निंग से या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से या ट्रेनिंग से वो नॉलेज हमें गेन हुई हो, तो वो हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज की कैटेगरी में रखते हैं. या फिर स्किल्स, वो भी वो नॉलेज या वो स्किल जो उस प्रोफेशन में हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. हैव सम गाइडलाइंस, रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट बाय द प्रोफेशनल सेंटर्स. मीन्स कि प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स. ठीक है, बाय द प्रोफेशनल सेंटर्स, जहाँ से भी आपने ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन की है, वहाँ के अपने एक मीन्स प्रोफेशनल सेंटर्स जिसको हम कह रहे हैं, वहाँ के अपने गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप किसी एग्ज़ाम देने जाते हैं, स्पेशली बोर्ड का एग्ज़ाम, ठीक है, अभी तो आप मतलब फॉरवर्ड किए गए हैं, लेकिन जब अगर आप 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें हर बोर्ड का, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, IC कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड का अपनी एक गाइडलाइन होती है, रूल होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कि हर स्टूडेंट को प्रॉपरली फॉलो करने होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशन में आ गए हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो कोई भी किसी भी तरह की पढ़ाई करके डॉक्टर तो नहीं बन जाता है. उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर लर्निंग होती है, क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है प्रोफेशनल सेंटर्स में. तो डॉक्टर किस में आएंगे? प्रोफेशन में आएंगे, और उनके पास उस डॉक्टरी की स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए अपनी फील्ड की. जो भी जिस भी प्रोफेशन में है उसको अपनी अपनी फील्ड की नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, और
लाइन की अपनी एक रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइंस होती हैं जो कि हर पर्सन को, जो भी उस प्रोफेशन में है, उसको फॉलो करना ही करना है। जैसे डॉक्टर्स जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग पे बताया जाता है कि अगर कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा हाइपर है तो आप उसके सामने कैसे बात करेंगे, या कोई बड़ी बीमारी उसको हुई है तो आप उसके सामने कैसे ट्रीट करेंगे, हाउ टू हैंडल दिस, या ये करना है आपको, ये नहीं करना है। तो सारे रूल्स उनको बताए जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रोफेशन। हु आर द प्रोफेशनल्स? येस, करेक्ट, दैट पर्सन हु engaged and who do this profession is known as professionals, ठीक है। वो पर्सन्स जो प्रोफेशन के में इंक्लूड होंगे, इंगेज होंगे, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, दे आर प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल, here you can see that lawyers engaged in legal profession and get fees। बिजनेस में हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस, ठीक है। याद रखिएगा ये मेन अभी हम आगे तीनों के बीच में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम बताते चल रहे हैं कि बिज़नेस में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा? टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन प्रोफेशन में मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? टू अर्न फीस, मीन्स हमें यहाँ फीस इन रिटर्न में हमको फीस मिलती है। जैसे कि लॉयर्स के पास स्पेशलाइज्ड अपनी नॉलेज होती है, स्किल्स होते हैं, उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, रूल्स फॉलो करने होते हैं, और लॉयर्स लीगल प्रोफेशन में होते हैं। और इन रिटर्न जब वो केस लड़ते हैं, केस करते हैं, तो उनको इन रिटर्न में फ़ीस मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ डॉक्टर्स किस में इंगेज होते हैं? मेडिकल प्रोफेशन में। जैसे लॉयर्स इंगेज होते हैं लीगल प्रोफेशन में, वैसे डॉक्टर्स इंगेज होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में। और इसके बदले इस रिटर्न में उनको प्रॉपर और फिक्स्ड फ़ीस मिलती है। डॉक्टर की फ़ीस तो फिक्स होती है ना, आप वहाँ जाकर ऐसे तो नहीं कहते हैं कि आपकी 500 फ़ीस है, अब हम नहीं हो पा रहा है, आप हमसे 400 ले लीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उनकी प्रॉपर और फिक्स्ड फ़ीस होती है। इट मीन्स कि प्रोफेशन में हमको रिटर्न में फ़ीस मिलती है, और बिज़नेस में इन रिटर्न में हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट, ठीक है। Okay, moving towards the next and the last topic of today's lecture, means last topic of, not the last topic of this chapter, last topic of today's lecture, ठीक है। हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे, और इसके बाद आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है अभी का, वो हम आपको बताएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ employment. Here you can see that we have completed business, we have completed profession, and the last category of economic activity is employment. So what we can say about the employment is also an economic activity in which regularly work done has been done by the person for other person, and in return he or she will get wages or remuneration, ठीक है। तो in simple words what we can say कि employment is a type of an economic activity in which regular work done for other person, means हम वर्क करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए वर्क हम नहीं करते हैं, हम दूसरे के लिए वर्क करते हैं, और इसके बदले में, इसके रिटर्न में हमको क्या मिलता है? वेजेस, सैलरी या रेम्यूनरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफिस में जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जो वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं, तो वो जो ऑफिस होता है और ऑफिस का जो हेड होता है या उस कंपनी का जो ओनर होता है, तो उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं या वर्कर्स वर्क करते हैं, वो किसके लिए वर्क करते हैं? कंपनी के ओनर के लिए वर्क करते हैं, अपने लिए तो नहीं वर्क करते हैं, ठीक है। उस वर्क को दूसरों के लिए किया जाता है, और इन रिटर्न में उनको सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन मिलता है। सैलरी मीन्स व्हेन यू विल गेट मंथली सैलरी आफ्टर कंप्लीटिंग अ 1 मंथ। वेजेस ये लेबर को मिलता है या वर्कर्स को मिलता है, डेली वेजेस मतलब पर डे का, तो ये पर डे पर मनी किस किस को मिलता है? लेबर्स को मिलता है।
कि काम एक दिन का पूरा हुआ और फिर उनको दे दिया। तो डेली वेजेस लेबर को मिलता है या फिर रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल से इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम काम तो करते हैं लेकिन दूसरों के लिए, दूसरे पर्सन के लिए वर्क करते हैं और इन रिटर्न में हमको सैलरी, वेजेस या हम कहें रेम्यूनरेशन मिलता है। हु आर एम्प्लॉयज़? यस, एम्प्लॉयज़ हु have engaged in this employment, who have engaged in this employment activity is known as employees। मतलब कि वो पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी में एंगेज होगा, वो एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे। एम्प्लॉयर्स किसको कहेंगे? वो हु एंगेज अदर्स फॉर वर्क, वो पर्सन जो दूसरों से अपना काम करवाएंगे या दूसरों को अपने काम के लिए एंगेज करेंगे। जैसे कंपनी के जो ओनर्स होंगे वो खुद तो काम करते नहीं हैं, ठीक है, उनके अंडर में लोग वर्क करते हैं। तो ये जो लोग हैं मींस एम्प्लॉयज़, इनको हम एम्प्लॉयज़ कहेंगे। वर्कर्स उनकी कंपनी में काम करते हैं, तो ये वर्कर्स क्या हुए? एम्प्लॉयज़। कंपनी के जो ओनर हुए वो क्या हुए? एम्प्लॉयर्स। क्यों? क्योंकि वो अपने अंडर में वर्क करवा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क समझिएगा, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको समझिएगा। एम्प्लॉयज़ किसको कहते हैं हम? जो एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी में इंगेज होता है, और एम्प्लॉयर्स जो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट के एक्टिविटी में इंगेज करवाता है, काम करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन हमने बता ही दिया कि एम्प्लॉयमेंट में इन रिटर्न क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस। सैलरी पर मंथ मिलेगी, वेजेस हमको डेली मिलते हैं, मतलब पर डे हमको पेमेंट होती है। तो बिज़नेस में इन रिटर्न में क्या मिला हमें? प्रॉफिट। प्रोफेशन के रिटर्न में हमें क्या मिला? फीस। और एम्प्लॉयमेंट में इन रिटर्न में हमको क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। वर्किंग इन ऑफिस, मतलब ऑफिस में जो वर्क करते हैं वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ वो आएंगे। बैंक में जो वर्क करते हैं वो आएंगे। क्लर्क या पियन, तो पियन जो है उनको डेली वेजेस मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो एम्प्लॉयज़, वर्कर्स हैं वो किस में आएंगे? एम्प्लॉयमेंट में। याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट में हम वर्क डन करते हैं दूसरों के लिए और रिटर्न में हमको सैलरी और वेजेस मिलता है। तो आई थिंक these 3 topics have understood by all the students. If you have any query, if you have any problem related up till here, then you can ask me. Okay, let's talk about the making of notes. ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी मीनिंग थी वो मैंने आपको दे दिया है। जो मैंने अभी इस रजिस्टर में लिखा हुआ है इसको आप इस तरह प्लीज़ मत बनाइएगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से डायग्राम या इस टाइप से फ़्लो चार्ट वगैरह बनाया है, तो आप इसको मत बनाइएगा। ट्रेड और कॉमर्स की जो मीनिंग हमने आपको प्रोवाइड की है उसको आप लिखिएगा। देन यू कैन कम टू दिस पॉइंट, बिजनेस और कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप आइएगा ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, बुक जिसके पास नहीं है तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसका पिक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मीन्स यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी हम जैसे हमने फ़्लो चार्ट वगैरह बनाए हैं तो आपको इस तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बिज़नेस कॉन्सेप्ट या ह्यूमन एक्टिविटी से हम आपको प्रॉपरली नोट्स मीन्स बुक के पिक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। आप उसमें से जो मेन पॉइंट है जो अभी हमने आपको समझाया वो आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड